عزت اور احترام کے ساتھ ذاتی خاتم جان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پچھلا کتاب سے آج اسٹڈی کروا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے تو وہ بات پر ضرور کریں جو بھی آج سامنے ہمیں گہرے مکاشفات ہیں خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشے ہیں، یہ بارہا موقع واپس نہیں آنے والا۔ میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے یا خاص کر ہفتے کے روز جب خداوند نے مجھے جو توفیق عطا فرمائی ہے میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میرا طریقہ کار کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ فرق ہے، اور اگر میں پوچھتا ہوں تو آپ ڈرتے ہیں تو بولتے نہیں یا نماز نہیں کرتے یا بائبل نہیں پڑھتے یا تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نصیحت یہ ضرور کروں گا کہ جب تک ہم ڈرتے رہیں گے اور اس طرح ہم خدا کے کلام کو اپنے سے دور کرتے رہیں گے، اس میں نہ کوئی میرا نقصان ہے اور نہ جو آئی ڈی بناتے ہیں پاسٹر صاحبان اور جنہوں نے یہ خدمت اپنے سر انجام رکھی ہوئی ہے، نہ ان کا کوئی نقصان ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ نقصان اس کا ہے جو ڈرتے ہیں، جبکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم میں نہ کوئی بڑا ہے اور نہ کوئی چھوٹا، ہم میں نہ کوئی عالم ہے اور نہ کوئی مبشر اور نہ کوئی پادری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم کاہن ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن کاہنوں کا سردار ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، اور جب کاہنوں کا سردار ہمارے درمیان میں ہوتا ہے تو اسی کی زبان سے اور اسی کے وسیلے سے ہم سب برکت پاتے ہیں، چاہے سنانے والا ہو، چاہے گیت گانے والا ہو، چاہے لیڈ کرنے والا ہو۔ تو میں آپ کو نصیحت کے طور پر یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو کچھ بھی آتا ہے، جتنا بھی آتا ہے، کوشش کریں کہ آپ پہل کریں، اور آپ کو موقع جب ملتا ہے تو اس میں سستی نہ کریں، کیونکہ اس طرح کسی کا نقصان نہیں ہوتا، یہ میرا اپنا نقصان ہو جاتا ہے کہ میں اسی جھجک میں، اسی پریشانی میں، اسی کمزوری میں اور اسی یا پھر شیخی میں یا بڑھائی میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ تو یہ میری آپ سب سے درخواست ہے، صرف اس میٹنگ میں ہی نہیں بلکہ ہر میٹنگ میں ادا کیا کریں۔ اور میرا سوال جواب پوچھنا صرف اس لیے منحصر ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور سیکھتے جب ہیں تو ہم یسوع سے سیکھتے ہیں، تو یسوع کے ساتھ سامنے آپ نے جواب دینا ہے، نہ کہ میرے سامنے، نہ کہ پاسٹر جان جنہوں نے یہ آئی ڈی بنائی ہے ان کے سامنے، یا کسی اور پاسٹر کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اس طرح ایسا نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم خدا سے دور ہوتے جائیں گے، اور اسی طرح اس آئی ڈی پر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، تو اگر زیادہ ہم ہی نہ ہوئے، ڈر کے علیحدہ ہوئے، تو اور جو آنے والے ہیں وہ کس طرح آئیں گے؟ تو اس طرح دوسروں کی دلیری کے لیے آگے ہمیں قدم اٹھانے ہیں تاکہ دوسرے اس میں شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم پچھلے ہفتہ 14واں باب پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 باتیں اس چیپٹر میں بہت اچھی ہیں، کہ پہلے تو خدا جو ہے وہ خود بات کیا کرتا تھا خوابوں میں اور رویا میں، اور اس طرح باتیں کرتا تھا، اور اب خدا نے ایک لیڈر بنایا۔ سیکنڈلی خدا کا خود بات کرنا، سیکنڈلی اس کے لیڈر کے ذریعے بات کرنا، اور تھرڈ پھر لوگوں کا خدا سے اور اپنے لیڈر سے بات کرنا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں پر مبنی جو آج بھی ہمارے درمیان میں یہ موجود رہتی ہیں، اور اسی موجودگی میں ہم جو ہے وہ یا تو برکت پاتے ہیں اور یا پھر جو ہے ہم بھول جاتے ہیں خداوند کے کلام کو۔ تو آئیں چلتے ہیں، ہم نے 14 باب کے آلموسٹ 19 آیات تک ہم نے ختم کیا تھا، بلکہ 25 تک ختم کیا تھا، جس میں کہ
खुदावंद का फैसला क्या है, और आज हम यहीं से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि किन बातों पर जो है वो खुदावंद का कहर बढ़ता है, और किन बातों के लिए खुदावंद हमें कहता है कि अब मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा उसकी बदौलत तुम समझोगे कि मेरे जो अहकाम है, मेरे भेद है, वो क्या है। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे, और फिर देखेंगे खासकर एक शिकायत करने वाली उम्रें होती हैं, और उस उम्र में जो भी बच्चा या जो भी जवान या जो भी बुजुर्ग अभी तक मौजूद है, तो अगर बुजुर्ग है जैसे मैं हूँ, अगर मैं वही किरदार अदा करता हूँ तो मेरी उम्र उन जवानों जैसी है जो 20 से 40 या 45 साल की उम्र तक मौजूद हैं, और अगर मैं उससे भी पीछे चला जाऊं तो वो नासमझी की उम्र है जो 5 साल से लेकर 18 साल तक है, और फिर उससे भी दूध पीने वाली उम्र है जो 1 साल से 5 साल तक है। तो इस तरह अपने आप को हमने देखना है। जो गिनती की किताब उसके 14 बाब उसकी 29 आयत में है वो देखेंगे हम, और फिर इसके बाद में देखेंगे कि इंसानी फितरत क्या है, कि वो बुरी बात को फौरन समझ जाता है, लेकिन जो नसीहत की बात होगी उसे समझने में वो बहुत से पॉइंट निकालता है। ये फितरत है इंसान की, ये शुरू से चलती आई है, और आज भी हमने देखना है कि क्या मुझ में ये फितरत है, और अगर ये फितरत है तो हमें कलाम के जरिए सीख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। क्यों? यहाँ पे आज हम बुरी सोबत में नहीं है जो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है, हम अच्छी सोबत में हैं जो अच्छी आदतों को और ज्यादा कुव्वत बख्शती है। ठीक है, आपने अच्छी तरह, हमने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि 12 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है कि अब तुम्हें मैं और भी भेद की बात बताता हूं। ठीक है, और फिर वो भेद की बात वो क्या है, वो फिर आपको पता है कि 13वें बाब में मोहब्बत के बारे में उन्होंने बताया है कि वो भेद की बात क्या है। ठीक है, तो इस तरह उसमें 12वें बाब 13वें बाब में भी कि वो शिकायत नहीं करती, वो हसद नहीं करती, वो गुस्से नहीं होती, वो बदगुमानी नहीं करती, वो नेकी से खुश नहीं, सॉरी बदी से खुश नहीं होती। इस तरह की बातें जो हैं वो पूरा जो कलाम है हमारी बेहतरी के लिए है, और अगर हम यही डरते रहें कि ये मुझ पे लागू होता है, या मैं ये समझूं कि ये दूसरों पे लागू होता है, मुझ पे लागू नहीं होता है, तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। ये हम सबका इंडिविजुअली हर एक पे लागू होता है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं समझा हूँ वो आपके सामने पेश करता हूँ। तो आइए खुदावंद के पास आते हैं, और अगर वक्त थोड़ा मिला तो फिर हम 15वां बाब कुछ हिस्सा देखेंगे, और फौरन 14 बाब के बाद हम फौरन ही मकाशवा में, अगले हफ्ते हम मकाशवा के 11 बाब में आएंगे। मकाशवा का 11 बाब देख लेना, पहले इस बाब को हम समझ जाएं, 14 बाब को, और 14 बाब के बाद हम मकाशवा का 11 बाब अगर देखेंगे तो आप कल जो अगला हफ्ता है 11वां बाब पढ़ के आना, ताकि हम देखें कि इससे कितना कनेक्ट है, जो पुराना अहदनामा और नया अहदनामा है वो कितना कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो आए, कौन पढ़ेगा खुदावंद के इस कलाम को, जो कि खुदावंद का फैसला जो होता है वो किस सूरत में बदलता है और कैसे बदलता है। ठीक है, 23 आयत से 25 आयत तक पढ़ दीजिए, 14 बाब 23 आयत से 25 आयत तक। कौन पढ़ेगा? थैंक यू बेटे,
थैंक यू बहन। जी बोलिएगा, आखिरी कलमात बोलिएगा जरूर। खुदावंद का शुक्र हो। तो बेटे आप देखो बहनों और भाइयों और बच्चों, देखें हम कि यहाँ पे बताया गया है, पहला तो है हम ये जानते हैं कि खुदावंद का कॉल जो है वो कभी बदलता नहीं है, जो खुदावंद कह देता है वो करता है, ठीक है। उसने हम ये देखें, पुरानी आ जाए बात पे कि देखें कि क्या वादा किया था इब्राहिम से, ठीक है। ये कलाम समझने के लिए है, क्या वादा किया था, और हम जानते हैं, ठीक है, कि मैं तेरी नस्ल को हर चीज बढ़ाऊंगा और वो चांद सितारों से ज्यादा होगी। और फिर वादा किया था कि जिस मुल्क के लान से तू निकलकर मिस्र आया था, वापस मैं तुझे उस कैनान में लेकर जाऊंगा, राइट। अब इनमें कौम में आगे देखे कितने लोग आ जाते हैं, 12 कबीले आ जाते हैं, और कबीलों के बाद उनके कबीले आ जाते हैं, ठीक है। ये अबाउट 6 लाख के लोग जो हैं, 70 जाने जो मिस्र आई थी और फिर 6 लाख के करीब यहां से निकल कर गई थी कनान को। अब यहां पे क्यों तब्दील होता है खुदावंद का फैसला, ठीक है, देखना तो हमने ये है, ठीक है। खुदा का फैसला उस वक्त तक तब्दील होता है कि जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते। तो इससे ये ना हुआ कि हम खुदा पर शिकायत करें कि खुदावंद आप बदल गए हो, या खुदावंद का कलाम जो बदल गया है, या बहुत लोग कहते हैं कि खुदावंद का कलाम बदल गया है, हालांकि हम अपने ही किरदार से खुदावंद के कलाम को जो है वो बातिल कर देते हैं अपने इरादों से, ना कि खुदा के इरादों से, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कहा गया है। इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी, देखने भी ना पाएंगे। कौन देखने पाएंगे, ठीक है। अगर लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि खुदा सवाल भी खुद ही करता है और जवाब भी खुद देता है, किसी के पास जवाब नहीं होता। एक जवाब सिर्फ मुझे बहुत पसंद आया है पूरी बाइबल में, पूरी बाइबल में मुझे एक बात बहुत पसंद आया जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये बाइबल ही की बात है कि जब्दी के बेटे जो थे उसकी माँ ने कहा कि एक के दाएं तरफ बैठाना और एक के बाएं तरफ, जब भी आप अपनी बादशाहत में आओ तो मेरे बच्चों को एक तरफ दाएं और एक तरफ बाएं बैठाना। तो खुदा ने कहा कि मैं फर्जंदों की रोटी जो है वो कुत्तों को नहीं दे सकता। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। औरत का क्या जवाब था, कौन बताएगा? बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? किस रोटी की बात कर रही है वो? जी, किस रोटी की बात कर रही है? जो आसमान से उतरी है, यीशु मसीह। आमीन। और वो पड़ी कहां है? टेबल पर, राइट। और किसकी टेबल पर है? खुदा के बेटों के टेबल पर है। और तोड़ता कौन है? वही तोड़ता है जो हक रखता है, जिसने कहा है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। वो जिंदगी की रोटी तोड़ता है और देता है। और अब किसको दी? फरिंदों को दी। और फरिंदों से निकलकर बचकर जो जमीन पे गिरी,
वो टुकड़े। अब कुत्ते क्या जमीन पर मेज पर बैठ के खाते हैं? नहीं, खुदा ने कुत्तों को रोटी नहीं दी, खुदा ने अपने फर्जिंदों को रोटी दी। लेकिन फर्जिंदों से जो बची वो किन्होंने खाई? चिड़ियों ने, कीड़े मकोड़ों ने। 12 टोकरे तो बच गए थे, 12 टोकरों में से जमीन पे कुछ पड़े रहे होंगे, और वो किन्होंने खाए होंगे? कुत्तों ने खाए होंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, उसी रोटी को जो यीशु आप हो, खैर है कोई बात नहीं, मैं कुत्ते ही सही हूं, लेकिन आप रोटी तो दे हमें, कहें तो सही हाँ या ना। तो फिर खुदा ने कहा ये मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन ए पूरी इसराइल के कौम, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उम्मत वाले इधर आ जाओ जरा। इस औरत को देखो क्या कह रही है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, लिखा हुआ है कि इससे बड़ा ईमान मैंने आज तक इसराइल के फर्जंदों में, खुदा के फर्जंदों में नहीं देखा जो इस औरत में देखा है। तो ये बड़ी बात है। कहां बदलता है खुदा का इरादा? कैसे बदला खुदा का इरादा? यस्सु का इरादा कैसे बदला? जब हम उसकी बात को, आमीन, अब देखें कि बदलता कैसे है। बड़ी अच्छी बात आगे लिखी हुई है। एक एक लफ्ज गौर पे करने वाला होता है, और एक एक लफ्ज हर एक का मतलब बयान किया गया होता है। 24वां आयत में लिखा है, पर इसलिए, लिखा है देखने ना पाएंगे, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालेब की कुछ और ही तबीयत थी, और उसने मेरी पूरी पैरवी की है। मैं उसको उस मुल्क में जहां वो आया है पहुंचाऊंगा, और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। अब मुझे बताएं कि किन दो शख्सों ने कहा था कि हम जाएंगे? नो मैटर, हमने पढ़ा है 13वें बाप में। बताएं, अभी आपने पढ़ा है पिछले हफ्ते, पिछले से पिछले हफ्ते 13वें बाप में पढ़ा है। आमीन। और कौन बताएगा बेटा? रूबी बेटी बोल रही थी, बोले। आमीन, ठीक है। यहूदा के कबीले में से और इफ्राहिम के कबीले में से यशुआ, जिसे होसाया कहते थे, लेकिन मूसा ने उसका नाम चेंज किया, उसका नाम यशुआ रखा, बचाने वाला। और आप जानते हैं कि यशुआ ही आगे उन्हें लेकर गया। तो दो आदमियों को क्या उन्होंने कहा था? कुछ याद हो आपको? 13 बाप में पढ़ा था जो, क्या कहा था उन्होंने? 10 कबीलों के सरदारों ने आके क्या जी? हाँ जी। और वो कितने कबीलों ने बताया था? आमीन। और कौन बताएगा? वो अदद में कितने थे जिन्होंने कहा था? बोले, कोई बात नहीं। अदद में कितने थे जिन्होंने कहा था गुच्छे लेकर आए थे? तो ये बातें याद रख जी। आमीन, आमीन। ये याद करने वाली बातें हैं बेटो, बच्चों, आप मेरे बच्चे हो। मुझे अच्छा लगता है, मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको कहता हूं, कलाम में तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ते हैं, लेकिन नॉलेज बढ़ती है, और इस नॉलेज बढ़ने से हम शर्मिंदा नहीं होते, ठीक है ना? तो इसलिए जो पढ़ा गया है उसे रिपीट करना बहुत जरूरी है। और अगर सवाल जवाब इसीलिए होते हैं, पूछना इसीलिए होता है कि रिपीट हो जाए। 12 कबीलों में से 10 कबीलों ने कहा था कि नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाते। इट्स टोटली मिजरेबल लाइफ,
ये तो खुदा हमें मार देगा। कहता है वहां चले जाओ, और ये तो खुदा हमें हमारी बुराई के लिए तुला हुआ है। वहां अच्छा था, हम मिस्र में खूब खाते पीते थे। कितने थे? 12 थे। 10 ने कहा था कि वो तो जब्बार हैं, वो तो अंगूर का गुच्छा। बेटी ने कहा, देखा ये बीच बीच में से जब ये किस्से याद रहते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ये बीच बीच में से किस्से पर। इससे साबित होता है कि मुकम्मल खुदा करने वाला है, और खुदा कलाम के जरिए मुकम्मल करता है, किसी न किसी तरीके पे, किसी न किसी वजह पे, किसी न किसी आईडी पे, किसी न किसी पास्टर की वजह से। तो 12 थे, 10 में से कहा था कि हम सिर्फ 2 आदमी थे, तो उन्होंने चुप कराया कालब ने उन्हें। चुप कर जाओ यार, चुप कर जाओ प्लीज, चुप कर जाओ। मैं तो यकीन भी नहीं कर सकता कि खुदा ने जब कह दिया मैं लेके जाएंगे, तो चाहे वो जब्बार हो, चाहे वो उनके गुच्छे अंगूर के बड़े हो, चाहे उनके जो कुछ भी हो, चाहे वहां दूध बहता हो, चाहे वो जो कुछ भी करता हो, वो सारी चीजें, गुच्छे वगैरह सारा कुछ तो हमारे लिए है, हमें देने हैं उसने। है तो उनके, तो देने तो किसने? हमने देने वाले के पास जाना है, हमें उस दुकान में जाना है जहां वो चीज बिकती है। आगे दुकान का मालिक जो रखता है रखता है, रखे ना रखे, हमें तो मिलनी है। यीशु ने क्यों जान दी? आप जितने भी सोना चांदी रख लें, जितने भी बड़े बड़े चर्च बना लें, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट कर लें, जितने भी सब कुछ कर लें, लेकिन हमने तो यीशु को देखना है, राइट? कालेब ने कहा कि नहीं, ये तो खुदा की जंग है। यशुआ भी उसके साथ शामिल हो गया, और उसने कहा नहीं, सही कहते हैं, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। खुदा ने उन दोनों को, कालेब को और यशुआ को, क्या कहा? के लिए कहा, इसलिए वो उस मुल्क को जिसे देने को, जो देने वाला है वो क्या कहता है, और इस बियाबान में, सॉरी, देने वाला है, देने की कसम मैंने उन बाप दादा से खाई थी, देखने ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन किया उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा, पर इसलिए कि मेरा बंदा कालेब ने कुछ और ही तबीयत थी, और उसने मेरी पूरी पैरवी की। तो कैसी तबीयत वालों को खुदा लेकर जाता है। अगर हमें इसी तरह जो इश्यूज हैं उसकी तरफ देखने हैं, तो इश्यूज को दुरुस्त हमने ही करने हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस को दुरुस्त हमने करना है। किस पर? जिसने कहा है कि I'll give you abundant life, not only the life। हम अगले हफ्ते बाइबल विजन में 15वां बाब देखेंगे ग्रंथन्स का। उसका मैंने आधा छोड़ दिया था, और आधा देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि वो क्या बताते हैं। लेकिन अभी जो है वो यही है कि तबीयत कैसी होनी चाहिए, और पैरवी किसकी करनी चाहिए। तो फिर देखो, खुदावंद का वादा जो है वो अटल रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है? इस तरह देखें कि कौन से लोग पर बदलता है। अब हमने देखा कि कौन से लोगों पर नहीं बदलता है और कौन से बदलता है, और उसका रद्द अमल क्या होता है। उस पर खुदा का कहर हो जाता है, और खुदा के कहर के लिए 26 से 28 तक को पढ़ दीजिएगा। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस ग्रोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूंगा। बनी इसराइल जो मेरे खिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो शिकायतें सब शिकायतें सुनी हैं, और तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है कि मुझे अपनी हयात की कसम के जैसा तुमने मेरे सुना और कहा है, मैं तुम में से जरूर वैसा ही करूंगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारी सारी तादाद में से, यानी 20 वर्ष में से लेकर उससे ऊपर ऊपर के उम्र के तमाम जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते थे, उनमें से कोई इस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई कि तुमको उसमें बसाऊंगा, जाने ना पाओगे, सवा याफीना के बेटे
कालब और नून के बेटे, हालेलुया, यीशुआ से। तो कौन हो गया? दो। क्यों हो गए दो? पैरवी के नजरिए से। क्यों हो गए दो? कि उन्होंने, तबीयत उनकी कैसी है, ठीक है। अब दूसरी लाशें जो दूसरे लोग हैं उनकी उम्रें बताई गई हैं, तो बी वेरी केयरफुल। मैंने बहुत टाइम जाया किया है, मैंने भी 40 साल जाया किए हैं। अब 21 साल से मैं समझदार हो गया था और 20 साल मैंने जाया कर दिया खुदावंत को पाने में, और 40 साल मुझे लगे हैं इसके साथ साथ तरबियत हासिल करने में। अभी 2 साल ऊपर हो गए हैं कि ऑलमोस्ट 10 साल से मैं खुदावंत की प्रीच कर रहा हूं। तो इसीलिए हमें अपने आप को देखना है कि जब मैंने समझ पा ली है, अब बताता चलूं, 1 साल से 5 साल तक माँ की तरबियत तालीम रहती है, सॉरी, माँ की तालीम रहती है, उसमें बच्चे को कुछ नहीं पता, ठीक है। 5 से लेके 18 साल तक जो बच्चा है वो अपने बाप की तरबियत पर चलता है और बाप को सब कुछ समझता है, उसको पता चल जाता है कि मेरी माँ थोड़ी कमजोर है। बाहर जब कोई बात होती है तो कहता है ठहर मैं अपने बाप को बुला के लाता हूँ, ठहर जा जरा, मेरा बाप तुझे ठीक करेगा, या मेरा चाचा ठीक करेगा, या मेरा मामा ठीक करेगा, ठीक है। 18 साल की उम्र तक ऐसे होता है, ये फितरत बताने लगा इंसान की, होता है ऐसा जनाब। बहुत ही अपने बाप को और अपने जो मर्द लोग हैं उनकी बहुत, उनके पीछे जो है वो चलता है और उनको अच्छा समझता है। और जब 18 साल से बड़ा हो जाता है तो कई बच्चे, अबू जी आपको नहीं पता, मामा जी आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, नहीं अबू जी मेरा बाप तो थोड़ा सा, नहीं यार पुराने वक्त का है, पुराने, उसको पता नहीं है नया जमाना क्या है क्या नहीं है। वो अपने आप को बड़ा पाटे खान समझना शुरू हो जाता है। कहां तक? 20-22 साल तक। और चूंकि उसने पैरवी सही नहीं की, उनकी हमेशा हर बात को गलत का, 10-20 साल तक तो वो गलत ही तालीम हासिल करता जाएगा सारी उम्र तक। हाँ, जब तक कि वो खुदावंद के पास ना आए। मैं बता रहा हूं कि मैं 40 साल के बाद आया। तो इस तरह उम्र का लिहाज, जो भी बच्चे हैं, जो भी बेटियां हैं, वो ध्यान करना चाहिए कि अब मेरी उम्र कहाँ है और कहाँ होगी और क्या होनी चाहिए, तो देन इट मेक डिफरेंस। अब आखिर में आते हैं जो कि बताया गया था कि तुम ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया। आखिर में देखेंगे, नहीं अभी है मेरे पास 10 मिनट हैं और आ, देखेंगे। आप पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा? 38 से 45 तक। तो वो आदमी जिन्होंने कुछ भी बुरी खबर दी थी खुदा के सामने वबा से मर गए। जो आदमी उस पुल का हाथ दरियाफ्त करने को गए थे, उनमें से नून का बेटा यशवा, यफता का बेटा कालेब, दोनों जीते रहे। और मूसा ने ये बातें सब की, तब वो लोग बाजार हुए और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगे कि आप और जिस जगह खुदा ने किया है वहां जाएंगे, क्योंकि हम से खता हुई है। मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदा की हुक्म करते हो? उससे इससे कोई फायदा ना होगा। ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि खुदावन तुम्हें तुम्हारे दरमियान नहीं है। और ऐसा कि अपने दुश्मनों के मुकाबला में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहां तुमसे आगे अमालेकी और कैनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे कि अब से तुम बर्गश्ता हो गए हो, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। सो वो शोकी करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई, खड़े कहने लगे, और खुदावन के ऐद का संदूक मूसा ने ना निकले। तब
खुदा उनका शुक्र हो। थैंक यू बहन, थैंक यू बेटी। अब खुदा ने कहा क्या था, देखना ये है, खुदा ने कहा क्या था और उन्हें किया क्या। शेखी जो मार रहे थे, 20 साल से बड़े जो हो गए थे, कि अबू जी आप नहीं कुछ जानते, माँ तो बड़ी कमजोर है, माँ को तो कुछ हर वक्त घर में रहती, कुछ नहीं पता इसको, हालांकि तालीम माँ से ही पाई है। और बाप को कहता है नहीं, किसी वक्त वो था कि बाप को कहता था कि नहीं ठहर मैं अपने बाप को बुलाता हूँ, कोई जरा सी बात हो जाए। अब वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, देखी जा 20 साल से बड़े हो गए हैं, हम जवान हैं, मर्द हैं, हम चढ़ेंगे जाएंगे। और जबकि खुदा ने 25 आयत में मैं ही पढ़े देता हूं, इसको देखें, इस बात का सवाल का जवाब कैसे मिलता है और कैसे वो लोग जो है वो खुदावंद की हजूरी से मामूर हो जाते हैं। लिखते हैं 25 आयत में, और वादी, जब वो बात सारी हो गई, उसके बारे में, गालिब के बारे में और उसकी औलाद के बारे में कह दिया, और फिर उन्होंने उसको ताकीद की कि तुम्हें अब करना क्या है। 25 आयत में कहते हैं, और वादी में तो अमालिकी और केनानी बसे हुए हैं, सो कल तुम घूमकर उस रास्ते से जो बरा कुलजुम को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। क्योंकि वो बड़ा लंबा रास्ता था ना, वो जल्दी कनान में जाना चाहते थे और चाहते थे कि खुदावंद ने कह दिया है हम कनान में जाएं, और हम तो अब ताकतवर हैं, हम तो पहुंचे ही पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कल तुम पहुंचोगे ना, हम आज ही शाम को, रात को ही पहुंच जाएंगे। उन्होंने कि 7 दिन के बाद तो ये दरबार गिर जाएगी, नहीं हम 3 दिनों के बाद गिरवा देंगे, क्योंकि नरसंगा में फूकने में हम बड़े तेज है। खुदा ने कहा नरसंगा फूक दो। समथिंग पॉज काय के लिए दिया जाता है। आपने एक ट्रैफिक लाइट देखी होगी जिसमें रेड कलर और येलो कलर और एक ग्रीन कलर की लाइट होती है। येलो कलर की लाइट जो है वो क्या हमें सबक सिखाती है, पॉज, ठहरना। जब ग्रीन कलर की होती है तो चलते रहते हैं, जब येलो आती है तो इससे पता चल जाता है कि अब रेड जलेगी और खतरा है, अगर मैं रेड में निकलूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पॉज येलो जलती है कि आप तैयार हो जाएं और रुक जाएं ताकि खतरे से बच जाएं। और जब रुके होते हैं तो येलो चलती है, अब पता चलता है कि मैंने निकल जाना है, खतरा टल गया है, अब मैंने जाना है। तो खुदा ने कहा कि देखो ये पहाड़ के इर्द गिर्द, पहाड़ के ऊपर जितने लोग हैं ना, ये केनानी और अमालिकी। और केनानी आपको पता है, केनानी और अमालिकी कौन थे, किस नस्ल में से थे, किस खानदान में से थे, किसके बेटे थे। पैदाइश की किताब उसका 10वां बाब। ये बच्चों ये रिपीटें होंगी, ये हम दोहराते रहेंगे इन बातों को, और मैं चाहता हूं कि आप याद रखें ताकि ये दोहराई हुई बातें जो हैं ये पूरी बाइबल में हमें साथ साथ हमारे चलेंगी। केनानी, मिस्री, फलस्तीनी, अमलुकी, अमीरी, अमूरी, कोशी, ये कौन थे? हाम के बेटे, नोआ के बेटे हाम, और हाम के बेटे, ये आगे पैदाइश की किताब 10वां बाब, ये जरूर याद रखा करें, और जब याद हो तो बोला जरूर करें, क्योंकि अगर बोला नहीं तो दूसरों की बेहतरी नहीं होगी। तो यहां पे आके वो नहीं गए, घूम कर नहीं गए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बड़े जार जार से रोए और बड़ा कुछ उन्होंने पीटा और किया और ये कहा, और जनाब चढ़ने शुरू हो गए। रोका फिर कि तुम्हारा इतनी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, इस मेहनत से अगर तुम मर जाए तो तुम्हारा क्या फायदा होगा। अगर तुम टाइम दे दोगे, थोड़ा सा वक्त दे दोगे, पॉज दे दोगे और उससे घूम के चलो जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन वो ना माने। तो क्या हुआ, अमालिकियों ने और केनानियों ने उन्हें मारा और सब मर गए। उन्हीं मरे हुए लोगों की खुदावंद हमायत करते हैं और कहते हैं खैर ये बशर है, लेकिन अब आप, मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, मैंने तुम्हारे लिए कफारा दिया है, अब इस कफारे को याद रखो, इस जान को याद रखो,
तो ये तुम जो लाइफ गुजार रहे हो, ये लाइफ जो है ये वो हयात नहीं है जो मैं हयात तुम्हें देता हूँ। हम 15वें बाब में देखेंगे। आज मैं इस 14वें बाब को ख़त्म करता हूँ। 15वें बाब को देखने से पहले हम देखेंगे मकाशवा की किताब उसका 11वां बाब। अगले हफ्ते आप मकाशवा की किताब उसका 11वां बाब पढ़ के आना, जो कि हम देखेंगे लाशों के बारे में, उम्रों के बारे में और मुद्दत के बारे में। ठीक है, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकतों से मेरे समेत हम सबको माला माल करे। आमीन। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बरकत स्टडी आपने करवाई और बहुत गहरी प्रकाश का आपको ध्यान किया। खुदा आपको और ज्यादा हिम्मत और सलाहियत आगे करके आप हम सब के लिए रहनुमा बनकर और बहुत सारी कमियों को कलाम के हवाले से जो आप आपको देख रहे हैं आपके साथ अपने घराने के साथ बच्चों के साथ बड़ी बरकत है। बस स्टडी के लिए कलाम की मैं गुजारिश करूंगा को जो आने वाली बयान करें। सिस्टर प्रेरण की आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज दुआ में रहनुमाई कीजिए। अगर नहीं है तो मैं, अगर आप इजाजत है तो मैं दुआ करूँ। जी भाई जॉन भाई हम सब अपने सरों को झुकाएं उस कादिर मुतले खुदा के जो था, जो है, जो अब तक रहेगा, जिसने अपने ये प्यारे लोग भेजे जो हमारे ज़हन को और हमारे दिल को इस कलाम से खोल रहे हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ। हम सब यीशु इकट्ठे होकर आपकी हजूरी में आए हैं। हमें कुछ नहीं पता, सब कुछ आपको पता है खुदावंद, और आप ही अपने लोगों के जरिए हमारे दिल और दिमाग और खुदावंद हमें हमारे जहनों को, दिलों को खोल रहे हो मेरे मसीह। मैं शुक्र अदा करता हूँ आपका। मैं आपके नाम को सजदा करता हूँ मेरे खुदा कि हम कुछ भी नहीं है मेरे परवरदिगार। वाकई खुदावंद हम पे कोई गर्दनकश कौम है कि आपका कलाम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते, लेकिन खुदावंद ये आपका फजल है कि आप हमें हमेशा माफ करते हो। आप हमेशा खुदावंद अपने रसूल इन्हीं खुदावंद लोगों की सूरतों में हमारे पास भेजते हो जो आपका कलाम खुदावंद खोल खोल कर हमें बयान करते हो। खुदावंद आपका कलाम हमारे ज़हनों दिलों पर लिखते रहते हैं। परवरदिगार बेहद शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद अपने पास्टर साहब के लिए। बड़ी बरकत चाहता हूँ खुदावंद इनके लिए, बहुत बरकत चाहता हूँ। आसमान पर जो आपका अच्छा खजाना है इनके लिए खोल दीजिए खुदावंद। वाकई मेरे मसीह, मेरे खुदा, आपने हिकमत की रूह अनायत करी मेरे परवरदिगार। इनके कलाम को सुन के खुदावंद खुदा जो तसल्ली मिलती है खुदा मेरे बाप, उसके लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ मेरे मसीह, क्योंकि खुदावंद तसल्ली आपके पास है और आपके कलाम में तसल्ली है खुदावंद। और मेरे मसीह इन्होंने आपके कलाम को खोला है, बेहतर तौर पर खोला है खुदावंद। आपके मुकाशवात को खोला है मेरे खुदावंद। हर चीज खुदावंद तरतीब से हमें सिखाई। मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरे खुदावंद इस मुकद्दस कलाम के लिए मेरे परवरदिगार जो आज हम सब ने सीखा। मसीह हम सीखने वाले और इस पर अमल करने वाले हो, क्योंकि खुदावंद बगैर अमल के हम आप तक नहीं पहुंच सकते। खुदावंद हमारे अमाल अच्छे कीजिए खुदावंद, तौफीक दीजिए मेरे मसीह। जितने भी हाजिर जमात है खुदा, मैं तमाम को अपने पास्टर साहिबान को आपकी हजूरी में लेके आता हूँ मेरे खुदा। आपके तख्त के सामने रखता हूँ मेरे रुगे पाक। आए यहोवा मेरे परवरदिगार, आपने अपना बेटा हमें बख्शा खुदावंद। मैं इस बेटे के वसीले से आपसे दुआ मांगता हूँ खुदावंद कि हमारे अमाल अच्छे कीजिए, हमें सिखाइए, हमारे ज़हनों को खोलिए, दिलों को खोलिए, तौफीक दीजिए खुदावंद। हम एक कान से सुन के दूसरे कान
निकालने वाले ना हो, बल्कि इस कलाम को अपने दिल की तख्तियों पे लिख दें। जिस तरीके से खुदावंद आपने मूसा को तो तख्तियां लिख के दी थी, खुदावंद मेरे परवरदिगार, इसी तरीके से ये कलाम हमारे दिल की और दिमाग की तख्तियों पे लिख दो मेरे परवरदिगार। आए परवरदिगार, आपके मुंह का कलाम पूरा हो खुदावंद, कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि तू खूब कामयाबी हासिल करे। आए रहीम खुदा मेरे परवरदिगार, मैं दिल की गहराइयों से इस कलाम के लिए शुक्र अदा करता हूँ, अपने पास्टर साहबान के लिए शुक्र अदा करता हूँ, इस चैनल के लिए, क्राइस्ट विजन के लिए, बाइबल विजन के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, जिसके जरिए हम रोज बैठकर हम आपके कलाम को सीखते हैं खुदावंद। मेरे मसीह, मेरे खुदा, मेरे बाप, मेरे परवरदिगार, मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ। मेरा दिल खुशी से लबरेज है खुदावंद कि आपके इस कलाम ने हमारे दिलों को खोला, हमारे ज़हनों को खोला। खुदावंद ये कलाम हमारे ज़हन और दिल पे बस जाए खुदावंद, और हम इस पर अमल करने वाले हों। मेरे मसीह, मेरे खुदावंद, दुआ मांगता हूँ पूरी हाजिर जमात के लिए, परवरदिगार जो बीमार है वो शिफा पाए, जो दुखी है तसल्ली पाए, जो बेरोजगार है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में रोजगार पाए, इस कलाम के वसीले से आपके नूर का आशीर्वाद के वसीले से बरकत पाए, बड़ी बरकत पाए, बरकत पे बरकत पाए। आए मसीह, एक दफा फिर अपने इन खादिम के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ यीशु, आपका देना हाथ इनके ऊपर रहे हमेशा खुदावंद, इनके घराने पर, इनके पूरे घर पर आपका देना हाथ रहे मेरे मसीह खुदावंद। मेरे मसीह, इस पूरी हाजिर हाजिर जमात के लिए आपका शुक्र अदा करता हूँ, मांगता हूँ और पाता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन।